Hello students, today we are going to start our next topic, that is modern techniques of control. Modern techniques ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਟੈਕਨੀਕ। ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਰਸਨ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਰੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜੋੜਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PERT ਐਂਡ CPM ਹੈ। PERT मतलब अपने को कि एक एवें का प्रोग्राम बनाया जाता वा जिन्हों आप इवैल्यूएट कर सकीए, मैजर कर सकीए तो दोबारा आपू रिव्यू कर सकीए, ठीक है। एंड CPM मतलब एक अपना क्रिटिकल बहुत ही मुश्किल वे है जिहदे अपने सारे टारगेट्स करते हैं। हम देखो एक एवें का कंपलैक्स प्रोजैक्ट है जिहदे अपने इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ है। तो नैटवर्क अपने को की है मॉडल और टेक्नीक्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਵੇਰੀਅੰਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਕੋਸਟ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਕੋਸਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, PERT ਐਂਡ CPM। PERT ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰ ਦਾ US ਨੈਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। CPM ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ PERT ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, PERT ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਇਵੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਇਵੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਲਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। PERT ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਐਸਟੀਮੇਟ ਗਿਵਨ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਈਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਔਨ ਟਾਈਮ ਐਸਟੀਮੇਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਈਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਓਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਟਾਈਮ। ਓਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਵੈਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਵੈਲ, ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ 'ਤੇ, ਵਿਗਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ 'ਤੇ। ਓਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਓਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ PERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ CPM ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ critical activities for completing the project assume expected time as the time taken to complete the project and concentrate on the critical sequence। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਓਨਲੀ ਔਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਐਂਡ ਨੋਟ ਦਾ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਸਾਰੇ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਾਫੀ ਟਿਪੀਕਲ ਪਾਰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ PERT ਕੀ ਹੈ? PERT ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟਾਈਮ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 3 ਟਾਈਮ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। CPM ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। PERT ਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਓਨਲੀ ਟਾਈਮ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਟ CPM ਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ। ਜੋ PERT ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ CPM ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਕੋਸਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ PERT ਡੀਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੇਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਰ ਨੋਨ ਰਕਰਿੰਗ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਨੋਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਕਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਸੀਮਸ ਐਜ਼ ਅ ਇਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ।
द प्लान द टाइम एंड कॉस्ट एस्टीमेट टू कंप्लीट अ कंपलैक्स प्रोजैक्ट। फिर ਇਹਦਾ मेन ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि क्रिटिकल ਜਿਹੜੇ पाथ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ टाइम एंड कॉस्ट ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ बट जिथे टाइम एंड कॉस्ट आंदा वा वो क्रिटिकल है, ठीक है। जो पर्ट है वो ओनली टाइम के उपर फोकस करता वा। फिर इट इनेबल मैनेजर टू फाइंड डेविएशन एट द पॉइंट ऑफ अकरेंस एंड टेक टाइमली एक्शन टू करैक्ट दैम, उन्होंने सही तरीके ना कर सकीए। फिर उस नैक्सट इट इंप्रूव कम्यूनीकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज पीपल परफॉर्मिंग डिफरेंट इवेंट, अलग अलग इवेंट्स होंगे उन्होंने सही तरीके ना आप कर लेना। ये सारिया टैकनीक्स वो कहते अपन बहुत इंपॉर्टेंट हैल्प करदियाँ वा। डिले इन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजैक्ट बाय इवन 1 डे इनवॉल्व ह्यूज फिक्सड कॉस्ट, जिदे करके अपन मेन प्रॉब्लम आ सकती है। लिमिटेशंस की है, ये सारिया टैकनीक्स अपन की टाइम कंज्यूमिंग होंदियां वा बहुत ज़्यादा। थ्रो कॉस्ट बेनीफिट एनालिसिस शुड बी डन बिफोर अपलाइंग, इन्हों अपलाइंग करन तो पहला ही कहते मैजर किया जाता तो प्रॉब्लम आती है। ये बेस्ड कादे उपर है टाइम एंड कॉस्ट। कई बार वो कहते अपना कॉस्ट एस्टीमेट जो लगाया वो गलत भी हो सकता वा, प्लैनिंग गलत भी हो सकती है। फिर वो टाइम एंड कॉस्ट वो कहते मेन ये अटेंशन करते हैं, इस करके मेन प्रॉब्लम आती है। कि मेन है बस तुम 2 मेन पॉइंट याद रखने हैं, टाइम प्लस कॉस्ट। जो अगर पर्ट है तो कला टाइम है, अगर CPM है क्रिटिकल पाथ है तो दोनों की गल करते हैं, ठीक है। नैक्सट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट तो जो आप किसी बिजनेस पैसा लगाने हैं, बिजनेस पैसा लगाया वो उपर आपू किन्नी दोबारा तो रिटर्न मिल रही है कि एक्चुअल दे विच बेनीफिट हो रहा वा, वो गल करते हैं। प्रॉफिट अर्नड और रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज़ इंपॉर्टेंट मैजर, बहुत इंपॉर्टेंट मैजर है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सैस के लिए। क्योंकि अगर आपू देखो बिजनेस अगर आप 50,000 लगाया वो उपर आपू 55,000 भी अगर हो रहा वा, मतलब 5,000 प्रॉफिट हो रहा तो ही बिजनेस का फायदा वा, अदरवाइज का कोई बेनीफिट नहीं है। तो अपने को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अपना फॉर्मूला की है, नैट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इन्वेस्टेड। नैट प्रॉफिट मतलब बिफोर इंटरस्ट एंड टैक्स, उदू पहला जो आप चीज़ों कैलकुलेट करते हैं तो कितनी कैपिटल अपनी इन्वेस्टेड की गई है। ये करन तो बाद एक कंपेयर किया जाता विद द रिटर्न ऑफ सेम पीरीयड इन द पास्ट, ठीक है, जिदे नाल कहते पास्ट तो जो अपना चल रहा होंगे। फिर ये अपना कंपेयर आप करते हैं कंपीटीटर्स दे नाल करते हैं ताकि आपको पता लग जाता परफॉर्मेंस कितनी आऊगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इनू शॉर्ट फॉर्म च आप ROI भी बोल देंगे हैं। फिर की है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। देखो मैनेजमेंट होंगे कंट्रोल करना, मैनेज करना इन्फॉर्मेशन, जो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है इन सारी कितों रिलेटेड जिन्नी होंगी है, ये जिन्नियां मैनेजीरियल फंक्शनस है लाइक प्लैनिंग थ्रू कंट्रोलिंग फॉर वेरीअस फंक्शनल एरिया लाइक प्रोडक्शन मार्केटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किस तरीके आप उन्होंने अगे की अगे डीलिंग करते हैं। पहला की होंदा सी इन्फॉर्मेशन वो कहते प्रोवाइडेड अकाउंटिंग सिस्टम विच वॉज लिमिटेड एंड क्वांटिटिव, जी क्वांटिटिव होंदी सी नूमैरिकल फॉर्म दे विच होंदी सी, बट बाद विच ही डाटा अपने को ह्यूज क्वांटिटी एंड काफ़ी स्पीड दे विच आन लग गया तो इनू अपनी रिट्राइव भी करन लग गया। अगर डाटा डिलीट हो जाता उन्होंने दोबारा आप लैके आ सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं। MIS के फीचर्स की है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के टाइम लाइन, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू टाइम वो अकॉर्डिंग अपना टाइम ये कंप्लीट हो जाता बिल्कुल। मैनेजर नीड अप टू डेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये आप जो भी होंगे लेटेस्ट सारिया करते हैं। फिर ये प्रॉपर एक्यूरेट होंदा वा, ठीक है, क्योंकि नॉट ओनली बेस टाइम के उपर नहीं होंगी, सारी जिनी इन्फॉर्मेशन होंगी डिसीजनस वो बेस पर होंगी है। ये काफ़ी रेलीवेंस होंगी है, ह्यूज डाटा ये आप कर सकती हैं, डिसीजनस लै सकती हैं। कंसाइज मतलब संखेप भी बहुत ज़्यादा वड्डी नहीं होंगी छोटी है, बट प्रॉपर आपानू क्लैरिटी होंगी है कि कदों किहड़ी चीज़ नूं आपां मैजर करना वा। कंप्लीटनैस मतलब प्रॉपर कंप्लीट होंगी है कोई किस वाइल पिकिंग अप डाटा, जो आप डाटा लै रहे होंगे हैं। मैनेजर कलैक्ट इन्फॉर्मेशन रैलीवेंट फॉर सॉल्विंग द बिजनेस प्रॉब्लम के लिए कहते जिन्नियां रैलीवेंट प्रॉब्लम्स होंदियां मतलब सही लगती वो लै लेते हैं। नैक्सट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अपने को की है कि किस तरीके ना आप रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, जो टारगेट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। हुण इट डिवाइडेड द ऑर्गेनाइजेशन इंटू स्मॉलर यूनिट, छोटी छोटी यूनिट्स के वंड देंगे वेयर ईच यूनिट इज़ हैडेड बाय मैनेजर, जिथे एक एक्टिविटी एक मैनेजर द्वारा की जाती है। फिर अपना दा मेन की है कॉस्ट सेंटर।
कॉस्ट सेंटर अपने को अचीव गोल्स विद इन कॉस्ट कंसटेंट बिना किसी रुकावट तो लाइक अपने को वेरीअस डायरैक्ट रॉ मटीरीयल लेबर इनडायरैक्ट जो आप बाहरों कोई खर्चा करवा रहे होंगे हैं तो कहते वह मेन खर्चा कितना आ रहा वो हैड के अंडर वो बजटरी आप देखो आप बजट किया बजट के आप लगाने एस्टीमेशन कादा लगाने एक्सपेंडिचर एंड रेवन्यू का दोनों का लगाने बजट की होंगे वा एस्टीमेशन लाना कादा खर्चे का एंड इनकम का। नैक्सट रेवन्यू सेंटर रेवन्यू अपनी एस्टीमेट करता वा कि आप मॉनेटरी टर्म इन्होंने सारिया चीज़ों में कर सकीए तो एक्चुअल फिगर्स नू फाइंड आउट कर सकीए। फिर मेन की होंगे वा प्रॉफिट सेंटर भी आप इन्हों प्रॉफिट वगैरह किस तरीके दिंदी रहना वा वो सारिया चीज़ा प्रॉफिट अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट दे विच कहते रेवन्यू कितनी है तो कॉस्ट कितनी है खर्चे माइनस करके अपने को कितना प्रॉफिट बच रहा वा। फिर इन्वेस्टमेंट सेंटर कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो भी सारिया चीज़ा हैगियां वा वो सारी। फिर रेशो देखो रेशो वाला चैप्टर जो तुहानू +2 दे विच तुसी हुण कीता वा अकाउंट्स दे विच सेम उही है कि आप किहड़ियां टेक्नीक आ बिजनेस नू चलाउण दे लई उहनू ऑपरेट करन दे लई किहड़े मैजर आप करदे। पहली हैगी लिक्विडिटी जिन्हों आप कन्वर्ट कर दिंदे कैश की फॉर्म च वो भी शॉर्ट पीरियड दे विच। करंट रेशो का फॉर्मूला की है करंट एसिड अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसिड किहड़े हुंदे जिहड़े शॉर्ट टर्म हुंदे अपने शॉर्ट टर्म लाइक कैश इन हैंड कैश एट बैंक ठीक है मार्केटेबल सिक्योरिटी। फिर क्विक रेशो किहड़ी हुंदी है कैश प्लस बिल रिसीवेबल उन्होंने आप क्विक एसिड्स भी बोल देंगे हैं। सॉल्वेंसी मतलब बिजनेस इवें दी कंडीशन दे विच है उहदी जिहड़ी वित्ती कंडीशन है बहुत मजबूत है कि वो पे सारे लॉन्ग टर्म डैट हुंदे कर्जे सारे की कर सकता पे कर सकता वा। तो इसका फॉर्मूला की है डेट इक्विटी रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो। नैक्सट है प्रॉफिटेबिलिटी कि किहड़ियां चीज़ों तो आपां नूं प्रॉफिट हो रहा लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है ठीक है नैट प्रॉफिट रेशो है किन्नी आपां नूं प्रॉफिट होने सेल होने कितना प्रॉफिट होया। फिर टर्नओवर रेशो टर्नओवर रेशो होंदी है कि अपने को सेल्स कितनी हो रही है सेल्स की गल करते हैं आप कि अपने को डेटर्स टर्नओवर फिक्सड ये सारिया हैल्प करदियाँ वा अपने को कि बिजनेस की एफिशिएंसी कितनी